ہمیں جزیرے پر ہر طرف پھیلی ہوئی ہریالی نظر آئی، جو کہ کل رات اندھیرا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ جا بجا پھیلے ہوئے عجیب و غریب قسم کے انابی اور پیلے پھول بھی دکھائی دیے، جن کا سائز ایک پیالے جتنا بڑا تھا اور ان کا رخ اوپر کی بجائے زمین کی طرف تھا۔ یہ کم و بیش چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اور نہ جانے ان میں سے کون سی بھینی بھینی خوشبو نکل رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہم نے جزیرے کے چاروں طرف بھی غور سے دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں وہ عفرت دوبارہ ہماری طاق میں نہ چھپی بیٹھی ہو، مگر کافی دور دور تک دیکھنے کے باوجود بھی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ ہم نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور پھر باقی بچ جانے والے مزدوروں کے ساتھ مل کر لانچ کو دھکیل کر دوبارہ ساحل تک لے آئے اور ایک رسی کی مدد سے قریب کے ایک درخت کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا کہ کہیں لانچ رسی کھل جانے کی وجہ سے گہرے پانی میں نہ چلی جائے۔ ہماری رائفلیں ابھی تک وہیں پڑی تھیں اور خیمے بھی اسی طرح ایستادہ تھے۔ اس بلا کا شکار ہونے والے ہمارے دونوں ساتھیوں کا بچا کھچا گوشت لگڑ بگڑ کھا گئے تھے، اور اب وہاں صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہی پڑے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی رائفلیں قابو کی اور پھر خیمے اٹھا کر ان کو لپیٹا اور احتیاط سے لانچ میں رکھوا دیا، اور رائفلیں ہاتھوں میں تھام کر جزیرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے چاروں مزدوروں کو اپنے ارد گرد نظریں جمائے رکھنے کا کہہ دیا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کہیں وہ بلا دوبارہ نہ حملہ آور ہو جائے۔ اس انداز میں ہم آگے بڑھتے گئے۔ جزیرے میں درختوں کی بہتاب تھی اور جنگلی جھاڑیاں جگہ جگہ راستے میں نظر آئیں۔ اب جیسے ہی ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں اس میں پھرنے والے جنگلی جانور اور حشرات الارض بھی نظر آئے۔ بڑا عجیب اور پراسرار جزیرہ تھا، جس میں سرخ رنگ کے جانور کافی مقدار میں دکھائی دے رہے تھے، اور وہ اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے جھاڑیوں میں چھپے ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کا جسم خرگوش کی مانند اور چہرہ بلی جیسا تھا۔ ہم نے ایسے جانور پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اب ہم آپس میں باتیں کرتے اور ادھر ادھر دیکھتے تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ جزیرے کی زمین یوں ہلنے لگی جیسے کوئی دیو قامت مخلوق اس کو رونتی چلی آ رہی ہو۔ ہمارے خوف سے رنگ فک ہو گئے۔ ابھی ہم اپنے بچاؤ کی کوئی صورت سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ہمارے سروں پر موجود درختوں میں ہلچل ہوئی اور زمین پر یکدم تیز روشنی پھیل گئی، اور یہ دیکھ کر ہماری دہشت سے چیخیں نکل گئی کہ ایک ڈائنوسار نسل کا جانور اپنی اونٹ جیسی تھوتنی درختوں سے نکالے ہمارے سروں پر موجود تھا۔ اس کا سر درختوں کے اندر آنے سے سورج کی روشنی زمین پر پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے دن کا سماں جنگل کے اندر تک پھیل گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھتے ہی ایک جانب دوڑ لگا دی۔ ابھی ہم 10 قدم ہی بھاگے ہوں گے کہ یکدم ہمارے پاؤں تھلے سے زمین کھسک گئی، اور ہم چیختے چلاتے ہوئے سر کے بل ایک گہرے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ یہ شام کے تقریباً 5 بجے کا وقت ہوگا جب 6 جنگلی ہاتھوں میں بھالے تھامے ننگے پاؤں جنگل میں یوں چلے جا رہے تھے جیسے وہ کانٹوں پر نہیں بلکہ کسی قلین پر چل رہے ہوں۔ ان کے سروں پر کسی جانور کی
आंतरियों की बनी हुई रस्सियां बंधी थी जिनमें रंग बिरंगे पर उड़से हुए थे। गालों को सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था। काले चेहरों पर सफ़ेद सफ़ेद दांत और ठोड़ियां कदरे लंबूतरी थी, जिसमें से अक्सर जंगल जानवर बेदहानी में जा गिरते थे, जिन्हें बाद में ये लोग निकाल कर अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। गड्ढे में गिरते ही वो सब रेत के खाली होती हुई बोरियों की मानद एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। गड्ढे की गहराई कमोबेश 12 फुट के करीब थी। तैमूर अली एक 1.5 फुट लंबी और 1 इंच मोटी लकड़ी उठाकर उसकी नोक से गड्ढे की दीवार में एक सुराख बनाने लगा। चौंका दीवार नरम थी, इसलिए उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़ी। तैमूर अली मजीद 2 सुराख निकालने लगा और 1 फुट के फासले से सुराख निकालता जा रहा था और कुछ ही देर में उसने 3 सुराख निकाल लिए। अब मजदूर उठकर खड़ा हो गया और तैमूर अली उसके कंधों पर खड़ा मजीद सुराख निकालने लगा और मुसलसल आधा घंटा मेहनत करने के बाद 3 और सुराख निकाल चुका था। मगर काफ़ी देर हो गई थी और कुछ जंगली हमारे सरों पर पहुंच गए थे। दरख्तों की छाल से बनी रस्सियां उन्होंने कुएं में फेंकी और साथ ही हमें एक नासमझ में आने वाली ज़बान में कुछ कहा और हमें यह समझने में कतई देर ना लगी कि वो हमें इस रस्सी के सहारे ऊपर आने को कह रहे हैं। ये नंग धड़ंग वैशी थे जिनके चेहरे हमें देखते ही खुल उठे थे। अब जंगल में शाम के साए गहरे होते चले जा रहे थे, पर मजीद 2 वैशी हाथों में बाला थामे यूं खड़े हमें आता देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अनहोनी चीज देख ली हो। हम तेजी से चलते हुए उनके नज़दीक पहुंच गए। हमें आता देखकर वो खुशी से नाचने लगे। वैशी हमें लिए दर्रे के अंदर दाखिल हुए। हमें अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। हम हैरत से वहां फैले हुए खैमों को देख रहे थे। यूं लग रहा था जैसे हम किसी तहजीब याफ्ता दुनिया में आ गए हों। सब खैमे तरतीब से बने हुए थे। उनकी बनावट और उनमें इस्तेमाल होने वाला सामान सब का सब बिल्कुल एक जैसा ही था, लेकिन एक बड़ी झोंपड़ी जिसका शायद सबसे बड़ा था, एक बहुत ही ऊंची जगह पर बनी हुई थी, जिसके ऊपर एक लकड़ी पर हरन की खोपड़ी लटकी हुई थी। ये गालबन इस कबीले के सरदार की रिहाइश मालूम होती थी। ये सोचते हुए हम चलते हुए बस्ती में दाखिल हो गए। जैसे ही हम बस्ती के वस्त में पहुंचे, झोंपड़ियों से बच्चे और औरतें निकलकर अपने अपने घरों के बाहर जमा हो गए। वो वैशी हमें झोंपड़ी में छोड़कर वापस लौट गए। हम कुछ देर बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे को देखते रहे, फिर यहाँ से बाहर निकलने की कोई तदबीर सोचने लगे। हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे। तमाम वैशी वस्त में एक बेहानक और मकरूह शक्ल की औरत के आगे 2 जानू बैठे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे कोई स्कूल टीचर अपने सामने बैठे हुए बच्चों को कोई सबक पढ़ा रहा हो। वो भयानक शक्ल औरत ना जाने कौन सी जुबान में अश्लोक पढ़ रही थी, जो उन सब की समझ में आने से कासर था। औरत ने अपने दाएं हाथ में किसी जानवर की टांग की हड्डी थामी हुई थी और बाएं हाथ में एक खरगोश पकड़ा हुआ था, जो खौफ से तड़प रहा था। वो अपनी बकवास के दौरान बार बार जंगलियों को इस खरगोश की तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करती, जिसके जवाब में जंगली उसको खरगोश को देखकर चीखते। फिर देखते ही देखते उस औरत ने एक झटके से इस खरगोश का सर उसके धड़ से अलहदा करके दूर फेंक दिया। ये देखकर तमाम जंगली सजदे की हालत में जमीन पर गिर गए। उन्हें इस तरह देखकर
औरत ने हाथ में झूलता हुआ खरगोश का धड़ अपने दांतों से नोचना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो खाल समेत उसके जिस्म को अपने पेट में निगल गई। वैश्यों में मौजूद एक बूढ़ा शख्स जो इसकी ये तमाम कार्रवाई बगौर देख रहा था, उसके खरगोश खाते ही उसने किसी परिंदे की सर की बनी हुई एक विसल अपने जुब्बे की जेब से निकाली और फौरन अपने मुंह से लगाकर जोरदार फूंक मारी। इस सर में से एक तेज घंटी नुमा आवाज निकली और जमीन पर पड़े हुए तमाम वैश्य यूं उठ खड़े हुए जैसे अगर उन्हें एक लम्हे की भी देर हो जाती तो उन पर क़यामत टूट पड़ेगी। औरत ने बूढ़े शख्स से कोई बात कही तो सब उसकी आवाज़ सुनकर उस झोंपड़ी की जानब मतवज्जे हो गए जिसमें इस वक्त हम सब कैद थे। शाह ने उठकर झोंपड़ी की दीवार का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। वो जंगली घास फूस से तैयार की गई थी लेकिन काफ़ी मजबूत लग रही थी। उसने कोई तेज़ धार किस्म के आले के लिए झोंपड़ी में नज़रें दौड़ाईं लेकिन उसे वहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आई जिसका इस्तेमाल करके वो दीवार में कोई सुराख बना सके। तैमूर अली उसके इरादे को भांपते हुए उसके नज़दीक आया और कहने लगा, क्या सोच रहे हो? मैं खुद इसी जाविये पर सोच रहा हूँ, लेकिन मैं रात होने का इंतज़ार करूँगा ताकि रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ से फ़रार हो सकें। इसलिए हमें चाको चौबंद रहने के लिए इन 2 घंटों तक आराम कर लेना चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी ना उठाना पड़े। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला। एक वैश्य हाथ में 2-3 परिंदों को लटकाए अंदर दाखिल हुआ। परिंदों के सिर्फ पर साफ थे या भुने हुए जल गए थे मगर जिस्म साबत ही थे। यूं लगता था जैसे उन्हें जिंदा ही भुना गया हो। ये देखकर उन्हें अबकाइयाँ सी आने लगी। वैश्य ने उन्हें इशारा करते हुए परिंदे एक तरफ रखे और दोबारा बाहर निकल गया। उन्होंने परिंदों की तरफ देखना भी गवारा ना किया और सस्ताने के अंदाज में ज़मीन पर बिछे कपड़े के बिस्तर पर बैठ गए। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और कुछ ही देर में एक सकून किसी कैफियत तारी हो गई। उन्होंने उठकर झोंपड़े से बाहर झांका तो बाहर उन्हें सिर्फ एक वैश्य बाला थामे दरवाजे पर पहरा देते नजर आया और वो भी नींद की वजह से झूम रहा था। किस्मत उन पर मेहरबान थी। उन्होंने 2 मजदूरों को उस पर नज़र रखने का कहा और ख़ुद तीनों झोंपड़ी के आखिरी हिस्से की जानब बढ़ गए। वो जल्द अज जल्द यहाँ से भाग जाना चाहते थे। थोड़ी सी तलाश से उन्हें झोंपड़ी में एक नोकीली लकड़ी मिल गई जिसकी मदद से उन्होंने दीवार में सुराख निकालना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में इतना बड़ा सुराख बनाने में कामयाब हो गए जिससे एक शख्स बाआसानी गुजर सके। लकड़ी एक तरफ रख कर दोबारा बार इस सुराख से बाहर की जानब निकलने लगे। झोंपड़ी के बाहर तारीकी फैली हुई थी। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े अंधेरे में चलते हुए एक जानब चल पड़े। अंधेरे में चलते हुए वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। उनका एक गलत कदम उन्हें मौत की वादी में ले जा सकता था।